Can you see the Microsoft Office? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. So today we are going to discuss about the structural oral situational approach. Here, the name is given as structural oral and situational approach. Here, situational approach and along with the structural approach will be discussed. This approach is popularly known as the SOS approach. S means structure, O means oral, and situational means S for situational. And it came into being as an alternative to the direct method. ये direct method के place पर आया था, okay? And it is an outcome of the experiment carried out in the army campus during World War Nine. Hello, World War II. And it is the presentation and the practice of carefully selected and graded grammatical structures of English in effective and meaningful situations, initially through speech and later through reading and writing. Are you getting? ये समझ में आ रहा है? It is the presentation and the practice of carefully selected and graded grammatical structure. इसमें grammatical grammar के selected और graded screen नहीं दिख रही है? हाँ. Just a minute. अब दिख रही है? ब्लैंक आ रहा है सर मेरी स्क्रीन पे. नहीं, इस पे तो आ रहा है. दिख रही है सर इनके में नेटवर्क प्रॉब्लम. The structure oral situational approach. Sometimes it is called as SOS approach also. SOS means इसको हम short में किया हुआ है. S for structure, structural, O for oral, and S for situational. And it came into being as an alternative to the direct method. ये direct method के alternate आ रहा था, यानी direct method के place पर हम इसको use कर सकते थे. It is an outcome of the experiments carried out in the army campus during World War II. ये जब World War II हो रहा था उस टाइम पर आर्मी के कैंप्स में आया था. Okay? आर्मी में इसको यूज किया जा रहा था. That is why sometimes it is called as army method. Okay? Army method हम बाद में बात करेंगे क्या है. It is the presentation and the practice of carefully selected and graded grammatical structures of English in effective, meaningful situations. Initially through speech and later through reading and writing. इसको जरा थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस है. केयरफुली हम कुछ ग्रामर के सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को लेते हैं. ओके, वो सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने पहले भी आपको बताए थे. उसी का ये आगे का कुछ पार्ट है. 275 जिसमें ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स थे उनको लिया जाता है. ठीक है, ऑफ इंग्लिश इन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस, यानी कि उन जो ग्रामर के सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स हैं उनको इफेक्टिव मोड में और मीनिंगफुल सिचुएशंस में लिया जाता है. एंड इनिशियली थ्रू स्पीच एंड लेटर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग. स्टार्टिंग में हम पहले क्या करेंगे, स्पीच पर हम फोकस करते हैं. ओके, स्पीच में यानी कि स्पीकिंग पर. एंड लेटर और बाद में हम किस पर, थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग. बाद में हम रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करते हैं. ओके, so basically it is oral approach also. Okay, यानी oral का means speaking पर, and situational means depending upon the situations, कैसी situation है उसको कहाँ पर use किया जाना है. Okay, now we know that language is viewed as structurally related element for encoding of the meaning. यानी language हम किसको बोलते हैं, कुछ हमारे words होते हैं उनको हम एक डिकोड करते हैं और बाद में फिर हम उसको एनकोड करते हैं. यानी पहले हम उसको एक सीक्रेट कोड बनाते हैं. जो हमारे लेटर्स हैं वो सब सीक्रेट कोड ही हैं. ओके, जब हम उसको समझने लगते हैं सो दिस मीन दैट हम उनको एनकोड कर रहे हैं. तो लैंग्वेज का मतलब होता है डिकोडिंग को पहले डिकोड करना फिर एनकोड करना. ओके, नाउ द एलिमेंट्स बीइंग फोनेम्स, मॉर्फेम्स, वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स एंड सेंटेंसेस टाइप्स. और ये जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, वही जो हम वर्ड्स वगैरह की बात कर रहे थे, उन क्या है वो सारे फोनेम्स हैं. हेलो, कैन यू हियर? जी जी. So, okay.
थोड़ा सा रिप्लाई भी करते रहा करो। ओके, तो लैंग्वेज को हम क्या मान के चलते हैं? लैंग्वेज इज यूज्ड एज द स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स फॉर एनकोडिंग ऑफ द मीनिंग। किसी मीनिंग को हम एनकोड करते हैं। ओके, नाउ सेकेंडली द एलिमेंट्स बीइंग फोनेम्स, और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? फोनेम्स होते हैं, जिसको हम ध्वनि जो होती है हिंदी में भी बोलते हैं ना। उसके बाद मॉर्फम्स हैं, उनसे क्या अक्षर अक्षर बनते हैं, फिर शब्द बनते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। स्ट्रक्चर्स में हम फ्रेजेस एंड इडियम्स भी आते हैं। ओके, फ्रेजेस आते हैं, क्लाउजेस आते हैं, इडियम्स नहीं है। ओके, एंड फाइनली फिर क्या बनते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस के बाद में पैराग्राफ और बाकी चीजें आगे चलती रहती है, बट इनिशियली दे आर क्या है वो? Initially they are phonemes. After that they become the morphemes. Phonemes में जो sound होती है, okay? और morphemes से बनकर combination of the morphemes is a word. Morpheme का combination, morphemes क्या होते हैं? जो हमारे अक्षर होते हैं, उनसे वर्ड बनते हैं, वर्ड से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से फिर सेंटेंस बनते हैं। आफ्टर दैट इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में राव, डॉक्टर राव हैं, उनकी थ्योरी कहती है, he says, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। that इस थ्योरी में this approach is that इस अप्रोच में जो थ्योरी है वो क्या है? दैट लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सिचुएशन। लैंग्वेज किसमें एग्जिस्ट करती है? सिचुएशंस में। ओके, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वैक्यूम। ये कि वैक्यूम रह सकती है, यानी ये क्वाइट नहीं रह सकती, खाली नहीं रह सकती है। ओके सर रिपीट कर दीजिए सर। बहुत ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं हम। इस नेटवर्क प्रॉब्लम होगी सर, कट रही है आवाज की वजह से। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सिचुएशंस, इसको पॉइंट को नोट करना। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सिचुएशंस, लैंग्वेज सिचुएशंस में एग्जिस्ट करती है, एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वैक्यूम। ये ब्लैंक नहीं रह सकती। ओके, यानी जहां सिचुएशंस है वहां हम लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि एक कोई खाली जगह भी पड़ी है या कुछ चीज कहीं पर रखी हुई है, वहां पर भी कोई ना कोई सिचुएशन बनती है। कैसे? वी कैन से दैट the comp is on the table. Okay, समझ रहे हैं? And you can see the books. तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं? There are some situation कहीं ना कहीं बनती है। Okay, means we can use the language in any situations. Okay, language is used according to the needs of the situation. और language को हम situations की need के according use करते हैं। View of राव के व्यू के अकॉर्डिंग राव कहते हैं दैट प्रेजेंटिंग अ न्यू लैंग्वेज आइटम इन मीनिंगफुल सिचुएशंस। वो एक नई नई मीनिंगफुल सिचुएशंस में लैंग्वेज को प्रेजेंट करने के लिए कहते हैं। कैन यू हियर? इट वुड मेक द इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल लर्नर्स। और ये लैंग्वेज में बता दो। सिचुएशनल यूज ऑफ इंग्लिश इज एम्ड एट इन दिस अप्रोच। और इस अप्रोच में हम इंग्लिश को एज ए सिचुएशनल यूज करते हैं। ओके, यानी जहां पर हम सिचुएशन किसी भी तरह की देखेंगे, सो वी कैन यूज दिस इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश की हम बात करें, बट वी कैन यूज एनी लैंग्वेज आल्सो। यदि हम उसको सिचुएशन में डाल रहे हैं, तो देयर विल बी द सिचुएशनल अप्रोच। कैन यू आर यू गेटिंग अर्चना? यस सर। ओके, prominent names associated with this approach are, राइटर्स हैं या कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो इसके साथ में एड करते हैं, जो इसको फेवर करते हैं। उनमें है चार्ल्स फ्राइज, हैरोल्ड पामर, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या है? उसके 3 प्रोसेस हैं लर्निंग को सीखने के लिए। सबसे पहले क्या है? रिसीविंग। सबसे पहले हम रिसीविंग, जिसको हेलो फर्स्ट इज द रिसीविंग। जब हम किसी लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या करते हैं? हम रिसीव करते हैं। ओके, मीन्स लिसनिंग हो सकता है वो, या सिचुएशनल को व्यूइंग भी हो सकता है, या सीइंग भी हो सकता है। ओके, सेकंड फिक्सिंग इन द मेमोरी बाय द रिपीटिशन। फिर उस चीज रिपीट करते हैं। सुना हमने,
then we start to speak. हम उसको बार बार बोलते हैं and it in the actual case until it becomes a personal skill. और हम उसको जब तक यूज करते रहते हैं जब तक कि हमारी सेल्फ स्किल नहीं हो जाती. ओके, no one is responding. Okay, sir. ओके ओके, वेरी गुड. बोलते रहा करो बीच बीच में थोड़ा. बाय. तो अब समझ में आया कि लैंग्वेज हम कैसे एक्वायर करते हैं. फर्स्ट वी रिसीव. ओके सर. हेलो सर. यस सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो. बोलो निकेश. हेलो बोलो सर जी. निकेश, सुन रहा हूँ. सर ये हाँ. जो आपने पूरा बताया एक बार इसे सर इंग्लिश में बता के इंग्लिश साथ में फिर पूरा सारा बाद में हिंदी में ले लिया करो पहले. आप. हाँ हाँ, हिंदी में साथ के साथ हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको. नहीं नहीं सर, वो हिंदी आप साथ साथ में बताते हैं, मतलब वो एकदम बाद में पूरी हिंदी बता दिया करो अच्छे से, अच्छा हो जाता है. क्या हम क्या कह सकते हैं. डोंट वरी, क्लास में भी रहेगा. ओके, स्पीकिंग को हम क्या कह सकते हैं क्लास में जैसे बताते हैं. ओके, तो लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, पहले रिसीव करते हैं. सर लैंग्वेज एक को तो पहले आवाज रिसीव बहुत कट हो रही है. करेंगे. सर आवाज क्लियर नहीं हो रही, ठीक से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी. आप यदि सुन रहे हैं कि लैंग्वेज को हम तीन तरह से एक्वायर करते हैं. पहले रिसीविंग होता है. रिसीविंग मींस हम किसी को ले रहे हैं, लिसनिंग. आफ्टर दैट फिक्सिंग इन द मेमोरी बाय रिपीटिशन. ओके, यानी इसको फिर स्पीकिंग करते हैं. आफ्टर दैट यूजिंग इट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस, हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं जब तक उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते. Okay. According to Gita Nagaraj से according क्या है, the use of the mother tongue can be avoided. मदर टंग को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं यदि हमें इंग्लिश को एक्वायर करना है या मास्टरी करनी है. इन द व्यू ऑफ दिस, इस तरह से गीता नागराज सजेस्ट करती है दैट these language items should be given in the meaningful situation. यदि हम बच्चों को कोई भी लैंग्वेज आइटम दे रहे हैं, ओके, वो मीनिंगफुल सिचुएशन में दें. हम सिचुएशन क्रिएट कर दें. जैसे हम ये भी कह सकते हैं आज आपने स्कूल में क्या देखा, आज आपने गेम में क्या किया, या फिर कहीं का उनको व्यू दिखा सकते हैं किसी भी तरह का, जैसे कोई पार्क है या नेचर है या इवन स्कूल में क्या हो रहा है, उस सिचुएशन को क्रिएट करके हम बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हैं. एंड द लर्नर कैन डिड्यूस द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट द सिचुएशन इन विच इट इज यूज्ड. और इस तरह से बच्चे और उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं और मास्टरी गेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज पर. पिटमैन क्या कहते हैं, that the situation will be controlled carefully to teach the new language material. और इस तरह से बच्चों को ये नई लैंग्वेज सिखानी है कंट्रोल्ड वे में कैसे सिखाएं. In such a way that there can be no doubt in the learner's mind regarding the meaning of what he hears. जो बच्चा कुछ भी सुन रहा है वो कैसे समझेगा, तब समझेगा वो कंट्रोल्ड होना चाहिए. ओके, तो इस तरह से गीता नागराज का क्या पॉइंट्स है. सबसे पहले स्पीच इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग. ओके, लैंग्वेज टीचिंग के लिए सबसे मेन क्या है, स्पीच है, यानी सबसे पहले हमको बोलना आना चाहिए. ओके, उसके बाद इसी के पॉइंट में न्यू लैंग्वेज आइटम एंड द वोकैबुलरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड ओरली. न्यू लैंग्वेज जो भी आइटम है वो कैसे होने चाहिए, वो ओरली प्रेजेंट होने चाहिए. ओके, बाद में फिर रिटन फॉर्म में होने चाहिए. सेकेंडली, the language items which are commonly used by the native speakers. लैंग्वेज के वो आइटम्स जो हम नेटिव, यानी कि हम पर्सनल, जैसे हमारी कोई लैंग्वेज है हम लोग बोल रहे हैं, इन देयर डे टू डे लैंग्वेज आर सेलेक्टेड फॉर टीचिंग. यानी हमें वो सिचुएशंस, वो वर्ड्स या वो वोकैबुलरी उठानी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए जो उनके डे टू डे लाइफ में यूज की जा रही है. ऐसे में हम उनको बहुत डीप लिटरेचर में ले गए एंड द रिजल्ट विल बी जीरो. रिजल्ट क्या रहेगा बाद में, जीरो रहेगा. ओके, थियर्डली
items are also graded according to their usefulness, frequency and teachability. कि आइटम्स को हमें इस तरह से भी सिलेक्ट करना चाहिए जो सबसे पहले उनकी क्या उपयोगिता, क्या हम उनको ले सकते हैं क्लास में या बच्चों को सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है उनको आउट ऑफ द सिचुएशन ये देते हैं। ओके, सेकेंडली उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी ऐसे होने चाहिए वो बार बार बच्चे उसको रिपीट करते रहे तभी उस पर मास्टरी ये भी होना चाहिए कि टीचर उसको पढ़ा सकते हैं सही तरह से या नहीं, ऐसा ना हो कि टीचर को ही पढ़ाने में कोई समस्या आए। ओके, देन the native the language items thus selected are presented and practiced in the meaningful situation। और इस तरह से हम आइटम जो बच्चों को देंगे, आइटम यानी कि कोई भी सेंटेंसेस या कोई भी प्रैक्टिस देंगे प्रेजेंट करने के लिए, तो वो पहले उसमें प्रैक्टिस्ड होंगे यानी परफेक्ट होंगे पहले प्रैक्टिस करने के बाद, और फिर उनको मीनिंगफुल सिचुएशन पर हम थे रीडिंग एंड राइटिंग्स आर द बेस्ड ऑन आइटम व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। बच्चों को वो उन चीजों के बारे में रीडिंग और राइटिंग करानी चाहिए जो चीजें हम पहले ही उनको शो कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उनको बहुत टफ चीज दे दी। यस सर, 5th पॉइंट में ये दे रखा है जनरल सर्विस लिस्ट। सर ये क्या है? जनरल सर्विस लिस्ट वही है जो डेली के हम यूज करने वाले हैं। ओके, जनरल सर्विस लिस्ट, जनरल मतलब कॉमन। ओके, ओके डे टू डे लाइफ वाली चीजें। ओके, ओके देन नेक्स्ट इज, अब ये तो जस्ट अ मिनट, सिचुएशनल अप्रोच की हम बात कर रहे थे। प्रभु हैं एक राइटर, उनके अकॉर्डिंग द एसओएस मींस, एसओएस का मीनिंग अभी आपको मैंने बताया था, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ओके, प्रिंसिपल्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग क्वेश्चन, यानी इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो बार बार इसके क्या प्रिंसिपल हैं उनमें क्वेश्चन किया जाता रहा है। मेनली ऑन द ग्राउंड दैट लर्नर प्रैक्टिस सिचुएशन डिड नॉट एंश्योर दैट दे कुड मेक सेंटेंस करेक्टली इन अदर कॉन्टेक्स्ट। समटाइम ऐसा भी होता है कुछ लोगों का जो इसको अपोज करते हैं कि यहाँ पर जनरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे पूरी तरह से सेंटेंसेस को करेक्टली नहीं बना पाते हैं। ओके, and that although learners seem to learn their command of the language structure at the end of the structurally graded course, और finally जब वो वर्क करते हैं तो वो सीख पाते हैं। Yet lasting several years was still very unsatisfactory। इसको छोड़ दीजिएगा, it's not so good। अब ये तो था हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच वाला, इसमें सिचुएशनल भी साथ के साथ काउंट है एसओएस में। अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में अब आप देखिएगा, सबसे पहले मेथड हम इसको कहते हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं शुरुआत वाला। मेथड क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मेथड में बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, जैसे हमने पहले भी कहा था कि किस तरह से चीजें की जाती हैं, वो है, यानी इट डील्स विद हाउ। ये किसको डील करता है, हाउ टू, यानी कि किसी चीज को कैसे किया जाए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग, हम क्या कहेंगे कि टीचिंग को कैसे किया जाए, टीचिंग कैसे कराई जाए। द मेथडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंडिकेट्स द सीक्वेंस टू बी फॉलोड इन द लैंग्वेज टास्क और द एक्टिविटी। कि लैंग्वेज को की टीचिंग की जो मेथडोलॉजी है वो किसके बारे में बात करती है कि कोई लैंग्वेज की कोई भी टास्क या एक्टिविटी को किस तरह से कराया जाए, उसको कैसे फॉलो किया जाए, एंड द रोल ऑफ द लर्नर एंड द टीचर इन इट, कि यहाँ पर टीचर का और स्टूडेंट का क्या रोल है। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। कैसे हम टीचिंग कराएंगे, टीचिंग के कोई भी टास्क या एक्टिविटीज हैं वो कैसे की जाएंगी, एंड द टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल है। मेथड में हम करते हैं। सेकेंडली अप्रोच क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है व्हाट, यानी हम क्या सीखना चाह रहे हैं। एक हम कैसे सीखेंगे, दूसरा हम क्या सीखेंगे। लैंग्वेज का क्या नेचर है,
वो थियरी होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग सजेस्ट मेथड एंड टेक्निक्स व्हिच कैन लीड टू इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग। टेक्निक्स का यूज करना, मेथड को साथ में यूज करना, दैट विल बी द अप्रोच। ओके, सर्टेनली मे बी टर्म्ड एज अप्रोच टू द लैंग्वेज लर्निंग। और इस तरह से हम इस थियरी को अप्रोच कहते हैं। यानी अप्रोच में मेथड भी होते हैं, टेक्निक्स भी होती हैं। ओके, कि लैंग्वेज को हम किस तरह से सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, क्या स्पेशली बात करता है अप्रोच के बारे में। नाउ टेक्निक्स अभी है नहीं आपके। हमने पहले डिस्कस किया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? इट इज द वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज बाय स्टडीइंग द रूल्स ऑफ इट्स ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसमें ग्रामर के रूल्स सीखेंगे, देन अप्लाइंग दीज रूल्स टू द ट्रांसलेशन ऑफ दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को या सेंटेंसेस को हम एक ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे and text from the mother tongue to target language and vice versa। तो इस तरह से हम मदर टंग में या सेकंड लैंग्वेज में दोनों के सेंटेंस को सर डिस्टर्ब हो रहा ट्रांसलेट करते हैं। सो दैट इज और कहाँ से आवाज है? इनको कर दीजिएगा। ओके, स्ट्रक्चर और सिचुएशन मेथड, सिचुएशनल मेथड जिसके बारे में हमने बात की थी, वेरी शॉर्ट में यह है, इट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन of carefully selected and graded grammatical structure of the target language। आप इसको डाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इन effective and the meaningful situation, यानी कि हमें सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस है केयरफुली सिलेक्टेड और ग्रेडेड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का। ओके, कि हम ग्रामर के ग्रेड और सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स को लेते हैं, फिर उनको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक मीनिंगफुल और इफेक्टिव सिचुएशन में। ओके, द लैंग्वेज आइटम्स आर रिइंफोर्स्ड थ्रू ओरल प्रैक्टिस। लैंग्वेज के जो भी आइटम्स हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग या और कुछ भी है, वो सारे क्या पहले हम ओरली करते हैं। लैंग्वेज को बोलना है, लिखना भी सीखना है, तो उससे पहले भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द ओरल प्रैक्टिस। ओके, सबसे पहले हम इसको ओरल प्रैक्टिस में करेंगे, सिचुएशनल अप्रोच की यदि हम बात करें। उसके बाद है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ओके भाई ये बंद करके रख दूंगा, तुम बात कर लो पहले। syllable like the national functional syllabus। यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज किसके बारे में बात करती है? सिमेंटिक टेबल्स की तरह से बात करती है। सिमेंटिक सिलेबस में यानी ब्रेकेज होता है, जैसे नेशनल में नेशनल, बंद ही कर दे। नेशनल, फंक्शनल syllabus। It attempts to organize the language classroom so that the learner have to use the target language। और ये लैंग्वेज क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है, so that the learners have to, इस तरह, क्योंकि जिससे जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट हैं टारगेट लैंग्वेज को यूज करना सीख जाएं अपने कम्युनिकेटिव सिचुएशंस में। ओके, so that was about your structural and situational approach। okay, thank you, have a nice day। Thank you, sir।